अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मैं हूँ आपकी होस्ट रुजा सोहेल एंड द वीक इज़ प्रोग्रेसिंग जस्ट फाइन। यू नो, जैसे जैसे वीकेंड करीब आना शुरू हो जाता है मेरी एनर्जी बेहतर होना शुरू हो जाती है बिकॉज आई नो दैट वी विल बी अप्रोचिंग फ्राइडे एंड सैटरडे सून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने शो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। एज यू ऑलरेडी नो, डॉन इज़ वर्किंग विद एन इनिशिएटिव नोन एज ब्रीथ पाकिस्तान एज वेल, सो वी विल बी डिस्कसिंग क्लाइमेट चेंज टुडे। एंड आज हम लोग फ़र्क पड़ता में भी बात करेंगे अबाउट वर्ल्ड फूड डे विच इज़ एक्चुअली ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 16। ये क्यों ज़रूरी है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें लोगों को अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वी हैव समवन हु इज़ गोइंग टू बी हियर फ्रॉम फूडपैंडा हु विल बी टॉकिंग अबाउट इट एज वेल। एंड देन टुवर्ड्स द एंड लेट्स टॉक एंटरटेनमेंट में हम आज ड्रामा रिव्यूज़ भी करेंगे। तो नाउ दैट वी हैव द रन डाउन फॉर द शो, लेट्स गो टुवर्ड्स आवर फर्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता में है टुडे वी हैव अ गेस्ट ऑन सेट जिनका नाम है Muntaqa Paracha. He is the CEO of Foodpanda. Welcome to the show. Thank you so much. How are you doing? Very well, thank you. So you've come for a very important day which is World Food Day, right? So World Food Day क्यों celebrate करते हैं and why is Foodpanda feeling the need to take this initiative further? Let's hear from you first. So, well, as Foodpanda has food in its name, yes. So we're very closely linked with food. Yes. World Food Day is essentially around access to food, access to nutritional food. Yeah. Malnutrition पूरी दुनिया में काफ़ी एक बड़ा challenge है, especially in the developing world, including Pakistan. Yes. So it's geared around, you know, sort of awareness around. And hunger and malnutrition as well. Correct. Right. So it's geared around sort of removing or reducing hunger in the world, improving access to nutritious meals. That's one of the biggest challenges. ठीक है, and I remember World Food Day में अगर हम देखें जब बाहर के मुल्क में भी सेलिब्रेट किया जाता है तो वो फूड की डाइवर्सिटी बहुत इंजॉय करते हैं, डिफरेंट लोकल cuisines and all. And I believe Foodpanda with its home chef system and all the other things एक मौका देता है कि हम सेलिब्रेट करें डिफरेंट cuisines, right? बिल्कुल. So इस साल हम लोग का इनिशिएटिव क्या है? स्पेसिफिकली हमारी थीम है राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट थीम अ लिटिल। देखिए, इफ यू टॉक अबाउट आवर प्लेटफॉर्म, हमारा प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट एक्सेस एंड चॉइस। वी ऑपरेट इन मोर देन 35 सिटीज इन द कंट्री, व्हिच मींस कि किसी भी शहर में अगर आप हो, one of the larger ones, you will have access to multiple sort of cuisines, different types of cuisines, different levels of cuisines, meaning कि अगर आपको चाय पराठा लेना है वो आपके लिए available है. If you want to go and, you know, indulge in sushi for example, that's available. If you want to have home cooked food लेकिन घर में आपके पास access नहीं है food का for whatever reason या time नहीं है आपके पास, or you live alone, let's say. Exactly. So you can order from other people who cook in their homes. In their homes, absolutely. In fact, I have a friend of mine who is very closely associated with your home chef system as well, and she makes ice creams at home. So I would really love to point out as well कि आप लोग ये खाने की delivery भी किस तरह कर रहे हैं. I think it comes a little later, but now that we're at it, we can touch it. कि ये खाना किस तरह हम लोग make sure कर रहे हैं Foodpanda कि सही तरीके से deliver हो, it's not melted, that the quality of the food is still good, that it's reached. Gee, I think that's a very valid question, and it's a big concern as well for a lot of our customers. Especially in a country जहाँ पे हमारे temperature variation बहुत ज़्यादा है. Of course. We go from maybe 0 degrees to 45 degrees. To hell. So basically what we try to do is we try to optimize for delivery times के shortest time जो है खाना जो है वो bag के अंदर हो. Rider को allowed नहीं होता खाना को touch करना. What that means is कि when the vendor or the restaurant partner hands over the food, तो राइडर उसको खोल नहीं सकता, वो चेक नहीं कर सकता. इसलिए कभी कभार कभी कोई challenges आते भी हैं तो राइडर has no say. No clue about it. जी, because वो उसको हम इसीलिए कहते हैं because food safety and food handling is very very critical, especially with World Food Day as well. So with the theme, it's a very critical segment. जिसमें food authorities हमारे पास हैं of all the provinces. We work very closely with them to ensure कि अब home chefs हैं उनकी training हो around how to handle food. फूड पैकेज कैसे करते हैं, उसको हैंडल किस तरह करते हैं. So you train people to do that? जी. How interesting. And ये पर्पस हमारे लिए इतना important क्यों है given Pakistan specifically? Why would Foodpanda think that this is very important कि पाकिस्तान मार्केट के लिए इतना important क्यों है? देखिए हम if we go to the we have our internal purpose which also links very well with the World Food Day, which is meal for every table. So that's what we're trying to do. कि how can we give access to or deliver meal on every single individual's table in the country.
सो ये एक बिगर पर्पस, और पर्पस किस लिए? एंड बाय दैट यू बेसिकली मीन कि जो बंदा अपने घर में खाना ऑर्डर कर रहा है और जिसने वो डिलीवरी की है, एंड इवन द राइडर, so it starts from the top to the even bottom. the people who are the farmers, क्योंकि वो फार्म टू टेबल भी तो आ रहा है खाना, फिर टेबल से वो किसी और के टेबल पे जा रहा है, फिर उससे शायद किसी और के टेबल पे जा रहा है। राइडर जो है जब डिलीवर करता है तो he earns money for themselves. There is a sweeper in a restaurant, for example. He may be able to ensure कि मेरी next month की सैलरी आएगी. Why? Because एक एक्स्ट्रा चैनल है जो कि खाना डिलीवर कर रहा है, तो मुझे ज्यादा, हमारे रेस्टोरेंट को ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है. Yeah, so of course. Sort of all Foodpanda has aligned itself very well with the concept के हर टेबल पे खाना होगा. जी. Right, हर टेबल पे खाना है. And ये हम लोग there is also one thing known as the Foodpanda's rider program. जी. Right, so what is that? And ये economic empowerment में किस तरह हमें हेल्प कर रहा है? तो देखिए, राइडर्स हमारी बैकबोन है. हम एक महीने में तकरीबन 30 से 35 हज़ार राइडर जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे काम करता है एवरी मंथ. व्हाट दैट मीन्स इज कि जब राइडर खाना डिलीवर कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या ग्रोसरीज डिलीवर कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो हर ऑर्डर पे उसको एक पैसे मिलते हैं, अर्निंग मिलती है. ठीक है. हम इसको अब सॉर्ट ऑफ बेस करते हैं कि जो पाकिस्तान की मिनिमम वेज और प्रोविंस की मिनिमम वेज है उससे 30-35% ऊपर राइडर जो है वो कमाए. अच्छा. राइडर को फ्लेक्सिबिलिटी है, जब वो काम करना चाहे वो कर सकता है. अच्छा. वो दिन में 2 घंटे करना चाहता है या 10 घंटे करना चाहता है, देयर अलाउड. Nice. वो 3 महीने काम करके बोले मैं 1 महीना नहीं काम करना चाहता, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो पाकिस्तान अवाम के लिए तो बेस्ट है, आई थिंक. एक्चुअली उस दिन ऑर्डर आर्मी करनी हुई, उस दिन काम नहीं करना. You'll be surprised how many riders actually end up working every single day because वो थोड़ा सा महंगाई भी हो गई, तो कि एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें ताकि ऑब्वियसली बच्चों को स्कूल जाना है. एवरी राइडर जिनसे हम बात करते हैं, और हमारी ऑब्वियसली बहुत इंटरेक्शन होता है उनके साथ, सब अपने फोकस उनका होता है कि जी घर पे ऑब्वियसली खाना, अगेन मील फॉर एवरी टेबल, एंड बच्चों की पढ़ाई हो जाए, व्हिच इज रियली गुड कि एवरीवन इज फोकसिंग ऑन एजुकेटिंग द चिल्ड्रन. एंड दिस इज नाइस कि आप लोग मेक श्योर करेंगे देयर इज नो इनइक्वालिटी एज वेल. एवरीबॉडी हैज एन इक्वल चांस टू मेक द सेम काइंड ऑफ मनी एंड द सेम काइंड ऑफ जॉब, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग फ्रॉम फूडपैंडा टू डू. आपको लगता है कि ये ग्रोथ ऑफ रेस्टोरेंट्स बाकी ओवरऑल भी बढ़ रहे हैं? व्हाट इज फूड इनसिक्योरिटी एज वेल? हाउ इज इट कि फूडपैंडा इज मेकिंग श्योर कि फूड इनसिक्योरिटी ना हो लोगों को? Restaurants actually in the past few months now we see कि थोड़ा consistency आ गई है. By consistency I mean कि बीच में जब इन्फ्लेशन एक बहुत ज़्यादा हाई रेट पे चली गई थी, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वर हैविंग अ लॉट ऑफ ट्रबल ऑपरेटिंग बिकॉज डेली कॉस्ट शायद मैच नहीं हो रही थी. पिछले कुछ 6 months or so में we feel कि it's become better. We see less restaurants closing. We see more new ones opening up as well. मैं nationwide बात कर रहा हूँ, not only कराची, लाहौर या इस्लामाबाद, nationwide. So that's a very good thing. इसका फ़ायदा फिर ये है कि लोगों को access है again to food. Multiple types of food. आपके पास affordable foods भी आ जाते हैं, you know, 200-250 रुपीज़ का पूरा मील मिल जाता है आपको, एज अपोज टू 4000 रुपीज़ का भी मील वो भी आपको अवेलेबल है. सो फूड इनसिक्योरिटी को यहाँ से हैंडल करना एक बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज पाकिस्तान अगेन इज़ अ वेरी 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 चैरिटेबल कंट्री. इफ आई रिमेंबर द नंबर करेक्टली, आई थिंक वी हैव द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ income spent on charity in the world, or at least be in the top, you know, 3 or 5. So that's really big, right? Considering the state of the country as well. So इसका फ़ायदा फिर ये है कि हर किसी को हम एक access जो है to proper food, which is hygienic, which is packaged properly, which is good quality food being ensured and delivered in the right way. Absolutely. So we're discussing World Food Day with you guys. अभी आप लोग कहीं नहीं जाएगा. In fact, you can bring yourself some toast and some tea. और हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद and we'll discuss this a little further. Welcome back, my beautiful people. हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड फूड डे टुडे, और यू नो वी वर डिस्कसिंग कि ये पर्पस क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम वर्ल्ड फूड डे को सेलिब्रेट करें, एंड हाउ इज़ इट कि हम ये पर्पस से अलाइन हो रहे हैं. हाउ इज़ फूडपैंडा अलाइनिंग इटसेल्फ टू द पर्पस? देखिए, जो हमारा अपना पर्पस है फूडपैंडा का, मील फॉर एवरी टेबल, वो है ही सिर्फ अराउंड एक्सेस टू फूड. इसका मतलब ये है कि या तो खाना आप किसी को पहुंचा रहे हैं, या आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच रहे हैं कि आपके इस डिलीवरी की वजह से किसी और को खाना
मिल रहा है, क्योंकि वो उसको आमदनी मिल रही है, उसको आमदनी मिलती है तो वो घर जाता है तो वो अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, पेरेंट्स को खाना खिला सकता है। सिमिलरली जो हमारे साथ काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमारे सप्लायर हैं, कोई आटा वाला है जो पैंडा मार्ट में आटा देता है, कोई ऑयल देता है, उसके पीछे एक पूरी फौज है जो कि खड़ी हुई है, जो कि खेती बाड़ी कर रही है, फिर वहाँ से गांव से खाना लेके आपने सिटी में आना है, सिटी में ऐसे लेके आपने रेस्टोरेंट में जाना है या किसी के घर पे जाना है। वो पूरा जो है ना वो खाने के अराउंड एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अगले 3 साल में क्या हम 25% आबादी पाकिस्तान की उसको हम टच कर सकते हैं थ्रू हमारा फूड पैंडा का इकोसिस्टम। तो आपका पर्पस है टू रीच एज मेनी लाइव्स एंड फीड एज मेनी पीपल एज यू कैन, दिस वुड बी द पर्पस। एंड यू नो आई वांटेड टू आस्क यू एज वेल कि हाउ इज इट कि आपके सप्लायर्स बेनिफिट करते हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स, इट्स एन एंटायर चेन ऑफ पीपल, राइट? सो इफ वी कैन टच ऑन दैट एज वेल, किस तरह होता है ये? देखिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट को उठा लें आज जो हमारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हो, कोई ऐसा रेस्टोरेंट आपको नहीं मिलेगा जिसने हमारे साथ साइन अप करने के बाद अपना रेवेन्यू बढ़ाया ना हो। क्योंकि फ़ायदा ये होता है कि आप एक रेस्टोरेंट है जो एक बिग नेम रेस्टोरेंट हो, या आप ऐसा रेस्टोरेंट हो जिसका शायद किसी को नहीं पता, आपको एक फ्री मार्केटिंग मिल रही है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑब्वियसली बिकॉज डिस्कवरी हो जाती है, लोगों को नजर आता है। जब वो नजर आता है तो वो आपको ट्राई करते हैं। वो एक दफ़ा उसने घर मंगवाया, दूसरी दफ़ा घर मंगवाया, तीसरी बार वो आपके रेस्टोरेंट पे चला जाता है, या वो टेक अवे कर लेगा, या वो आके डाइन इन कर लेगा। और टेक अवे जो डाइन इन का चेक साइज होता है वो होता है भी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आप अकेले नहीं जाते, आप 2 लोगों को ले जाते हैं। तो एक ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को फायदा होता है, एक नया चैनल खड़ा हो गया जिसकी वजह से कैटेगरी बढ़ जाती है आपकी। That's amazing. So, Muntaqa, right? So I also wanted to ask you कि ये digitally how are we making sure कि Foodpanda is making sure कि you know query सही से register हो रही है? What I really love, I personally love the fact कि मैं जब Foodpanda पे delivery करती हूँ तो it lets me know that the guy is delivering my meal in 20 minutes, arriving any time now. I mean ये चीज़ें तो basic हैं, but other than that हम किस तरह digital revolutionization और करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग feed हों? देखिए, हम टेक्नोलॉजी को ही पूरा इस्तेमाल करके सारा ये काम हो रहा है एसेंशियली। उस पर सबसे पहला काम ये है कि जब आपने किया तो किस राइडर को साइन हो, उस राइडर को साइन होता है जो सबसे जल्दी रेस्टोरेंट पहुंच सकता है, या ऐसे टाइम पे पहुंचे कि खाना तैयार हो से 3 मिनट बचे, उससे ज़्यादा टाइम ना वेट करना पड़े राइडर को भी, क्योंकि उसका मतलब ये कि अगर जितना वो वेट करेगा उतनी वो कम डिलीवरियाँ करेगा, जितनी वो कम डिलीवरियाँ करेगा उतना कम कमाएगा। इसका मतलब है कि वो फिर इवेंचुअली एंड ऑफ द डे खाना अपने टेबल पे लास्ट डाल सकता है नहीं डाल सकता, वो एक सवाल बन जाता है। सो टेक्नोलॉजी को हम पूरा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम इज डन थ्रू ये डिजिटल, पूरे हमारे इंटरनली एल्गोरिथम्स बने हुए उसके अराउंड, जो पूरा एक डिजिटल सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ये सारा काम करते हैं। अब अगर एक कस्टमर है वो रीच आउट कर रहा है, लेट्स सपोज कोई कंप्लेन हो जाती है, उसको भी हम बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर रहे हैं कि मिनिमल टाइम में उसको क्विकली एफिशिएंटली रेजोल्यूशन मिल जाए। लेट्स सपोज कस्टमर को खाना नहीं मिला, उसने ये कंप्लेन किया, उसको ऑटोमेटिकली रिफंड मिल जाए, किसी एजेंट से बात ही ना करनी पड़े, उसका भी टाइम बचाएं, एजेंट का भी टाइम बचाएं। जितना इसको स्मूथ और ईजी कर सके उतना बेहतर है। हर बंदा चाहता है कि मैं किसी से बात करूं फोन उठा के, लेकिन वो सबसे इनएफिशिएंट यूज ऑफ टाइम। यस, दैट्स नॉट, किसी का दिल नहीं चाहता आई थिंक बात करने का, एंड आई लव दैट। कल भी मेरे एक्चुअली कल परसों आई ऑर्डर्ड समथिंग ऑन Foodpanda as well and somehow the restaurant canceled the meal, so it went in my wallet in the credit as well, और फिर वो खुद ही कटता रहा और खुद ही होता रहा, which I think is great as well. Okay, great. So is there something that we want to touch in terms of you know Foodpanda Panda Mart में, and how is it कि हम लोग जो है इस वर्ल्ड फूड डे को और ज़्यादा सेलिब्रेट कर सकते हैं? आई थिंक जो हमारे होम शेफ्स हैं वो बहुत क्लोजली लिंक होते हैं इसके साथ, क्योंकि हमारे तकरीबन 5000 होम शेफ्स हैं जो हमारे साथ कंट्री वाइड काम करते हैं ऑन Foodpanda, विच मीन्स कि इन 5000 में से तकरीबन 70% उसमें से औरतें हैं। उन 70% में से 50 से ज़्यादा फीसद वो हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया, तो वो पहली दफ़ा ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट अर्निंग कर रही हैं, उनकी अपनी इनकम बन रही है। ज़ाहिर है उसमें वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं, अपने घर के अंदर फैसिलिटेट कर सकती हैं अगर कोई और ब्रेड अर्नर है वहाँ पे। सो वो एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम हमारा बन गया, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं जितना ज़्यादा स्केल कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि सबको खाना बनाने का शौक है पाकिस्तान में जनरली स्पीकिंग। अगर एक हाउस होल्ड उठा लें, शायद हर फर्द को ना हो शौक, एक फर्द जरूर होगा हर फैमिली में जिसको शौक है। वो शौक को पूरे अपने नेबरहुड में भी फैला सकते हैं, उससे फिर वो कल को स्केल होके, कुछ हमारे होम शेफ्स हैं जो 2, 3, 4, 5 आउटलेट्स उन्होंने बना लिए हैं, कुछ होम शेफ हैं जो एक्चुअली कमर्शियल रेस्टोरेंट बन गए हैं,
बिकॉज वो इतना उनका अच्छा था, बर्गर जॉइंट था या कोई मोमोज का रेस्टोरेंट है, व्हाटएवर इट इज, यू नो दे कन्वर्ट फ्रॉम अ होम शेफ टू अ रेस्टोरेंट एज वेल. दैट्स अमेजिंग एंड आई लव दैट. आई थिंक वर्ल्ड फूड डे पे इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है कि वी आर एम्पावरिंग पीपल अराउंड अस to basically live in a very community-based system. So why World Food Day is important and why Foodpanda was here to discuss this. I think आप लोगों ने भी बहुत understanding ली होगी इस चीज़ से. And thank you so much for being on the show. Thank you so much कि आपने अपने thoughts हमसे share किए और World Food Day को highlight किया. I would like to go on a short break, and once we come back, we have another guest on set for you. See you after a short break.